I'll be taking your organizational behavior. Okay, second semester. The entire organizational behavior I'll be taking. Now, you have your external exams from 18th July, I guess. Yeah? Yes, there's so much more now. You have so much? There is no point being too stressful. We will keep. There's no point being stressful till you appear. You have your exams from 18th to 29th of July. Okay. When you come back in August, okay, when you come back in August, we will start the organization behavior proper chapters. Till then, we will keep the classes a little slow. Okay, we will do only the introduction part, but we will start the topic. Okay, because there are still some chapters that there is no nonsense in my class. If you have been doing this in other classes, I'm not concerned. In my class, if you do, I'll not allow you in my class. Whoever has a habit of it, please get rid of it. Now we'll start with your subject is organizational behavior. Both of you get out of my class. Organizational behavior. Okay. You all have studied organization. You all have studied what is organization, business or business environment में organization तो पढ़ा होगा या in general भी first semester में you must have been sit on the first bench. All three of you. आगे आगे खाली दिमाग में मत खराब कर। Organization. संस्था। 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 संस्था ठीक है डिफाइन कैसे करोगे संस्था व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन तुम आ जाओ आगे आ रही है ये बात आ रही है ना व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन Organization refers to the identifying the activity and grouping the activity in terms of coordination and can you give me one perfect example short but perfect example of organization क्या होता है तुम पढ़े हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़े ही हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है फिर से बोलो What is organization? Organization where all the companies and all the communities structure are working together to make the organization. Do you think Tata is an organization? Yes, ma'am.
Do you think Tata is an organization? Yes, ma'am. Tata is also an organization. There are all the companies in the Tata. Where is? Particular names. You tell me what is organization. हिंदी में ही बताओ organization से क्या समझते हो, क्या समझ में आता है, किस तरीके की चीजों को तुम organization बोल सकते हो. तुम organizational behavior पढ़ने वाले हो. पहले organization समझो, क्या होता है organization? Organization दो है जिसमें मैं group of people में जो एक दूसरे के बारे में मतलब कम्युनिटी जैसे वर्क करती है organization को upward direction में ले जाने के लिए उसी को organization. You are saying group of people? Yes, ma'am. अच्छा ये बताओ पटना में अगर 3 BHK फ्लैट में कोई मसाला की कंपनी खोलता है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है? दो लोग खोलते हैं, Startup. दो लोग. You said group of people. Now I'm saying only 2 people. Is that organization? Don't say 3 people. I'm saying only 2 people. ठीक है? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन होगा? नहीं होगा. बाकी कितने लोग कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा? सपोज करो पटना में 3 BHK फ्लैट में कोई बिजनेस चला रहा है, मसाला की कोई कंपनी है एक छोटी सी जगह में. क्या तुम्हें पता ऑनलाइन वगैरह का बिजनेस बहुत बढ़ गया कोविड के टाइम पे? ओके, तो वो 2 BHK फ्लैट है, वो 2 BHK फ्लैट वगैरह में तो हो ही रहा है, पैकिंग भी एक आदमी कर रहा है, शिपिंग भी का भी स्टिकर वगैरह भी लगा रहा है. You think that is organization or you think that is not an organization? Raise your hand whoever agrees it is organization. कौन-कौन कहते हैं कि दो लोग भी organization कहलाएंगे? दो लोग भी organization बना सकते हैं. अगर दो लोग भी काम कर रहे हैं बिजनेस तो वो organization, उसको organization बोला जा सकता है. Raise your hand. Whoever says this, हाथ क्या नंबर्स कम क्यों होते जा रहा है? पहले तो बहुत लोग हाथ उठाए थे. ठीक है, कितने लोग हैं? 4 लोग. 4 people raise their hands. The rest of you don't consider it organization? Is 50-50? ठीक है. You have not heard about non-profit organization? Then they don't earn profit. They don't work for earning profit, but they are organizations, right? देखो सेकेंड सेमेस्टर आ गए तुम लोग, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन नहीं कर पा रहे तरीके से, और पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस पे बेस्ड है. इंटरव्यूज में क्या होता है ना कि आप बहुत थ्योरी वगैरह पढ़ के जाते हैं और पूछ देता है एक सीधी सा क्वेश्चन जिसको कि तुम कम से कम 50 बार अपने सिलेबस में पढ़े, लेकिन तुमको मालूम नहीं है वो क्या है, और वहीं पे तुम पॉइंट लूज करते हो कि तुम थ्योरी तो सब लोग रख के चले जाते हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. Before studying organizational behavior, know what is organization. Organization दो लोगों को भी बोला जाएगा. ये जो 4 लोग हाथ उठाए, they were all right. 2 or more people, but 2 or more people who work towards a common objective. Common objective you have to mention. किसी ने mention नहीं किया है. एक दूसरे को support कर रहे हैं, ऐसा कुछ तुमने बोला. You mentioned goal, fine. Then that is also one important part of definition. 2 or more people who work towards a common goal or common objective will be called an organization. तो पटना में अगर कोई 2 BHK फ्लैट या 3 BHK फ्लैट में भी कोई मशीन रख के अगर एक छोटे से मसाला की कंपनी लोकल लेवल पे भी चला रहा है तो तुम उसको ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो. And the organizations, they do not always work for profit. There are non-profit organizations also. Organization का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक कॉमन गोल, एक कॉमन उद्देश्य के प्रति काम करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है. For example, if you consider Simaj College as an organization, this is an institution because it provides academics, but if you can, but it is also an organization. If you consider organization,
Many people are working here. We as teachers are working. There are people who are non-teachers. They are working. There are sweepers who get salary from this organization. You are coming here to get education. But यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है. क्या है ऑब्जेक्टिव? एजुकेशन. बस. अब तुम बोलोगे कि ये मेज एंड ऑल हाउ आर दे, उनका भी तो पर्पस वही है, सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो वही है. बच्चे आने वाले हैं, उसके पहले क्लास लीव कीजिए. वो बैठेंगे कैसे? वो निकले हैं, कुछ गंदा है. अगर ये द टेक्नीशियंस व्हाट आर दे डूइंग? कुछ डैमेज है क्लास में, तो यहाँ का वर्किंग कंडीशन खराब होगा. So see to it that everything is pitch perfect to provide education to you. Understood? This is organization. Okay? The second thing, the second part of the definition of behavior is, whose behavior are we talking about here? Human behavior? Human behavior? This much you all know कि ये human behavior के बारे में बात हो रही है. ठीक है? But there is more to it. तुम्हारा जितना सिलेबस करेंगे वो भी बहुत लार्ज होता है. ये सिलेबस बहुत वाइड है. मतलब तुम्हारा है, उसमें बीपीएम का सिलेबस अलग है. तो as much as I have seen your syllabus, उसमें भी बिहेवियर में काफी कुछ है. When we talk about behavior, this much you understand we're talking about human behavior. ठीक है? बिहेवियर बाद में समझना, पहले समझो ये क्या है. रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है? वो भी अभी पढ़ रहे हो, थर्ड सेमेस्टर में एचआरएम है तुम्हारे. ठीक है? तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर को भी हम एचआरएम पढ़ा रहे हैं. What are the factors of production? Just raise your hand. Factors of production क्या क्या होता है? ये बोलना नहीं है. ये सब बेसिक चीजें हैं, सबको पता होनी चाहिए क्लास में. Land, capital, labor. He said there are 4 factors of production, namely land, labor, capital, and entrepreneurship. Land, labor, capital, entrepreneurship. See, these are 4 factors of production. But since I am teaching you OB and maybe I will teach you HRM in third semester, we will focus on labor. जब हम यहाँ लेबर की बात कर रहे हैं तो ये बोलचाल की लेबर की भाषा नहीं है, मतलब मजदूर की बात नहीं हो रही है, ये ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है. ठीक है? Out of these 4 factors of production, only labor is that factor of production which is known to be the active factor of production. बाकी सब passive factors हैं. सिर्फ labor active factor of production है. क्यों? उसमें इमोशंस और ability to do work and ability to make others do work. Land कैसे काम करना चाहिए ये लेबर डिसाइड करता है. Labor is the one who is passive, मतलब something which is inert without being activated, that is passive. Labor is the one who will drive the other factors of production. Capital अपने आप grow नहीं करता है, capital को labor grow करवाता है. We have financial experts, we have accountants to do that, right? And you tell me one thing. There are, if we take examples of 2 different companies, company एक कौन बात कर रहा है क्लास में?
If we take example of two different companies, मान लो कि इसके पास land, labor, capital और entrepreneurship है. Same set of factors of production अगर इसके पास भी है, same capacity का land, same capacity का capital, same capacity का entrepreneurship skills इसके पास भी है. It is a proven fact कि जिस organization का labor resources अच्छा होगा, skilled होगा, वो organization हमेशा excel करेगी, हमेशा. अगर हम BBA बैच 1 की बात करें, ठीक है, और BBA बैच 2 की बात करें, सपोज करो एक एग्जांपल देके हम तुमको जो समझा रहे हैं. It's not the actual fact. I've just started taking classes in both the classes. But अगर कोई ये बोले कि ये पूरा बैच अच्छा है, ये पूरा बैच अच्छा है का क्या मतलब है कि सिर्फ इसमें से 4-5 लोग उठा लो वो अच्छे हैं? जब हम कहते हैं कि पूरा बैच अच्छा है का मतलब है कि हम एक एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज में सारे बच्चे मिला जुला करके अच्छे हैं. If I say that batch 1 is better than batch 2, this goes without saying कि बैच 1 में ज्यादातर बच्चे या मैक्सिमम बच्चे अच्छे हैं, तभी ये बैच अच्छा है. The same holds true for the organization also. जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैन पावर स्किल्ड होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैन पावर ज्यादा टैलेंटेड होता है, ज्यादा इनोवेटिव होता है, ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हर हाल में एक्सेल करेगी बाकी ऑर्गेनाइजेशन से जिनके पास शायद ज्यादा पैसा हो, ज्यादा टेक्नोलॉजी हो, लेकिन स्किल्ड मैन पावर नहीं. There are organizations in the world like Microsoft, like Google, like Facebook, okay, like McKinsey, not Instagram, like McKinsey. These organizations, they are known to hire the best people of the world. और इनकी हायरिंग ऐसी होती है कि इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस कॉलेज से पढ़ के निकले हो, तुम्हारे पास किस ऑर्गेनाइजेशन का कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है. They have their own recruitment algorithm, ठीक है, and if you are value adding to that organization, उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये लगता है कि तुम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो हायर करेंगे. McKinsey, BCG, Boston Consulting Group, these organizations, they do campus placement from IIMs every year. करोड़ों का पैकेज ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, लेकिन they hire the best people. They have people even from Harvard. They have people from the best management schools in the world. इंडिया में IIM से लोगों को लेते हैं ये. पिछले जनवरी में, पिछले मतलब इसी साल जनवरी में 7 से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था BCG में, IIM अहमदाबाद से. These organizations are the super consulting groups of the world. ये लोग मैट्रिक्स और मॉडल्स डिजाइन करते हैं जो हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं. इनके लोग, अंडरस्टूड? क्या बनाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस को इतना एक्सीलेंट? वहाँ का मैन पावर, वहाँ का मैन पावर. और इसीलिए क्योंकि मैन पावर का इम्पोर्टेंस बिजनेस में रियलाइज किया है, ठीक है, वो ये जानते हैं कि the businesses are working, the businesses will excel because of manpower. That is why ये organizations अपने manpower के behavior के ऊपर और उनके care के लिए इतना काम है. Gone are those days जब human resources लगातार बोले जा रहे हैं. Yes, even after warning, not good. Class, don't compare me to take some action which I don't have. There are students who are sincerely listening. Okay. You are the one sitting beside you. So we have देखते हैं. आपको भी ये लगता है कि टीचर को समझ So these are the organizations that
that completely have the most skilled manpowers of the world. ठीक है, ये बताओ कि ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, तुम अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तुम अभी पढ़ोगे एचआरएम पढ़ोगे, आगे थर्ड सेमेस्टर में मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ोगे, ठीक है, हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आई डोंट नो ये सिलेबस, लेकिन पढ़ना होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ोगे, उसी में ऑपरेशन मैनेजमेंट आएगा, अकाउंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, सबका मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, फाइनेंस यानी पैसे का मैनेजमेंट, अकाउंट्स का, प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी जो फैक्ट्रीज वगैरह में प्रोडक्शन होता है ना, उसका रूल रेगुलेशन कैसे बैच होता है, क्या होता है, वो सब पढ़ोगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी मार्केटिंग का क्या रूल्स रेगुलेशंस है, मार्केटिंग में कैसे मैनेज होता है, सेल्स कैसे होता है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट सब कुछ पढ़ोगे। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ोगे। कैन यू टेल मी, तुम सोचो, और हाँ, ओबी और एचआरएम आर द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, प्लीज रिमेंबर दिस कि ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, प्लीज डू नॉट स्टार्ट मेकिंग अप द आंसर्स। ऐसा नहीं सोचना कि कुछ मैम पूछी है तो बहुत भारी भरकम सा इसका आंसर होगा, वो कंप्लीटली तुम जैसा सोचते हो, तुम ही तो ह्यूमन रिसोर्स बनोगे कल किसी कंपनी के। तो आज जैसे सोच रहे हो, तुम जिस भी डिपार्टमेंट में काम करो, मार्केटिंग में रहोगे या प्रोडक्शन में रहोगे या फाइनेंस में रहोगे तो वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स ही ना, ठीक है, तो सारा रूल तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होता है। तुम सोच के बताओ, what is so special or what is so different about human resource management that is not the case with the other management? Financial management के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, मार्केटिंग के साथ नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ नहीं है। एक आंसर इसने दिया, बाकी कोई आंसर करना चाहेगा? Leadership and etiquettes and ये सारा कुछ आता है जो इसने एक वर्ड में समराइज किया, इमोशंस। हमारे अंदर इमोशंस होता है, ठीक है, हम मशीन नहीं, इसीलिए हमको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है। अगर तुमको कैश मैनेज करने के लिए दे दिया जाएगा और तुमको एक टीम मैनेज करने के लिए दे दिया जाएगा, क्या आसान है तुम्हारे लिए? कैश मैनेज करना, कैश मैनेज करना आसान है। Why? See, because yes, I'll tell you one thing. अब यहाँ पर आओ बिहेवियर में, देखो बिहेवियर जब पढ़ोगे तो तुम्हारा बिहेवियर दो तरीके से समझा जा सकता है, तुम्हारा भी और सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का भी। ये हो सकता है कि तुम में से बहुत लोग ऐसे हो जिनको अगर कोई काम बोला जाए, जिनको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए अकेले, तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, वो एकदम एंड तक उसको ला करके और उसका एंड रिजल्ट देंगे तुमको कि ये काम अलॉट किया गया और ये काम मैं करके दे रहा हूँ, आपको सबमिट कर रहा हूँ। लेकिन शायद वही लड़का या वही लड़की को अगर तुम एक ग्रुप में डाल दोगे, हो सकता है कि वो झगड़ लेके प्रोडक्टिविटी तो इज अनदर फैक्टर, लेकिन हो सकता है वो झगड़ ले, उसका बने ही ना टीम में, राइट? आसान होता है टीम वर्क करना? नहीं होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल को ये चाहिए होता है कि आई शुड हैव द लास्ट से इन एवरीथिंग। मैं दूसरे की बात क्यों मानूंगा, तुम मेरी बात मानो, अंडरस्टूड? इसीलिए जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हैं, then you study behavior in individual manner and group manner. क्यों इम्पोर्टेंट है बिहेवियर को दोनों कैटेगरीज में पढ़ना? देखो, तुम डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हो, ऑर्गेनाइजेशन में भी आते हो सकता है कल को अगर किसी कंपनी में तुम जाओ तो तुम्हारे बगल में जो लड़का लड़की बैठा होगा चेन्नई का हो सकता है कि तुम्हारे कंट्री का ही ना हो सकता है कि तुम्हारे रिलीजन का ना हो, तुम्हारे जेंडर का ना हो, ठीक है, तुम्हारे कलर का ना हो,
कि अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन काम कर रहे हैं, इंडियंस भी काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो भी काला गोरा कर दिया जाए हम ब्राउन ही हैं उनके लिए, राइट? हमारे यहाँ जो सबसे गोरा है वो भी उनके लिए ब्राउन ही है, का मतलब कि इंडियंस बाय रेस आर ब्राउन। अब तुम सोचो कि अगर माइक्रोसॉफ्ट में डिस्क्रिमिनेशन होने लगे अमेरिकन और इंडियंस को लेके, इंडियंस काम करेगा? काम तो नहीं ही करेगा, और कंपनी का नाम भी खराब होता है, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एथिक्स आल्सो, पॉलिसी प्रोसीजर्स। धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है? सब एक साथ। वी हैव डिफरेंट बिहेवियर इंडिविजुअली। तुम ऑर्गेनाइजेशन में जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, तुम सोचो 1 करोड़ का पैकेज किसी को दिया जा रहा है, 50 लाख का पैकेज दिया जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाता है, उसका आउटपुट कितना होता होगा? क्या हर आदमी एक ही चीज चाहता है जिंदगी में? नहीं चाहता है। और क्या एक ही चीज के प्रति एक ही तरीके का बिहेवियर होता है? नहीं होता है। तुमको हम इंडिविजुअल बिहेवियर समझाते हैं, अपने ऊपर लेके पहले समझो, बाद में ऑर्गेनाइजेशन में खुद समझ में आने लगेगा जब टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे। जब सेकंड सेम का एग्जाम देके आओगे तब फ्रेश माइंड से वो सब पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है? अभी इंट्रोडक्शन में समझो, तो फिर समझाएंगे। देखो, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करो, लेट्स टॉक अबाउट अ वर्ड कॉल्ड परसेप्शन। ठीक है? एक धारणा, परसेप्शन मतलब हाउ यू ऑब्जर्व थिंग्स, ठीक है? जैसे अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम आई, अग्निवीर आई, स्प्लिट है समाज उसमें 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स क्यों, 3 पार्ट्स भी बोल सकते हो। एक जो कंप्लीटली उसको निगेट करता है, नहीं ये एक सिरे से बिल्कुल दिस इज रॉन्ग। दूसरा वो ग्रुप जो ये कहता है कि नहीं, हम अपने आर्म्स, एविएशंस और आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा लाएंगे कहां से? मैन पावर की रिडक्शन तो करनी होगी, क्योंकि बजट तो फिक्स होता है ना। अगर हम सारा पैसा डिफेंस मिनिस्ट्री में दे देंगे तो बाकी मिनिस्ट्री का क्या होगा? हम डेवलपिंग कंट्री हैं, था पैसा नहीं है हमारे पास, तो लोग उस तरीके से सोचते हैं। तीसरा ग्रुप ऐसा है जो ये सोचता है कि इसमें ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए था, वो मॉडिफिकेशन करके अगर लाता था तो इतना रिवॉर्ड नहीं होता है। ऐसा ग्रुप, दिस इज योर ओन परसेप्शन ना, ये आपका अपना परसेप्शन है, आप इंडिविजुअली वैरी कर रहे हैं कि नहीं? मान्यवर मोहे का एक एड आया था, याद है? आलिया भट्ट का एक एड आया था कन्यादान के ऊपर, कन्या का ही दान क्यों, ठीक है? याद है? आपको नहीं लगा कि, देखिए वो उस आप में से बहुत लोगों को ये लगा होगा कि छोटी सी बात को हथेला बना दिया, हर बात को कल्चर से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। we need to evolve। जैसे कुछ विमेन उस चीज को सपोर्ट की कि we need to evolve, मतलब हम फंसे हुए हैं अपनी पुरानी सोच में कि हमको जो थोप दिया गया है, हम सोचते हैं कि ऐसा ही चलना चाहिए, यही सही है। बट एक ग्रुप ऐसा था जो ये बोला कि अगर हर छोटी बात के लिए आपको कल्चर से खिलवाड़ करने के लिए छोड़ दिया गया तो आप तो पूरा कल्चर के साथ खेल जाएंगे, ठीक है? एक ग्रुप ये भी सोचता है, और तीसरा ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटी सी बात है, आएगी खत्म हो जाएगी, ठीक है? ये परसेप्शन वैरी किया कि नहीं किया? इंडिविजुअल परसेप्शन वैरी किया, तो ये होता है परसेप्शन। ऑर्गेनाइजेशन में भी इतने सारे लोग काम करते हैं, 1.5 लाख 2 लाख लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी आई या कोई रूल आया, हो सकता है कि हर इंडिविजुअल का सेम परसेप्शन ना हो, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होती है क्योंकि रेजिस्टेंस आने लगता है। कोविड के बाद पूरा फुल फ्लेजेड डिजिटलाइज्ड टेक्नोलॉजी चलाने से ऐसा नहीं है कि ये अडैप्ट करना इतना स्मूथ था। There were a lot of troubles in between that. नहीं हो पाया, ठीक है? So it's not easy. Change is not easy, and perception towards change is one very important. ठीक है? अगर तुम लोग जिस टाइम पे सुबह सो के उठते हो, अगर उस टाइम से 2 घंटे, कोई 8 बजे उठता होगा, कोई 5 बजे उठता भी होगा,
अगर उसको 2 घंटा पहले शिफ्ट करने के लिए बोल दिया जाए, इज दैट चेंज इजी? सोचो कि एक छोटी सी बात से तुमको इतनी दिक्कत हो जाती है, इतनी मेरा पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है डे का। Imagine you are emotionally and financially invested in the organization when you're working there for 9 to 10 hours every day, और वहां कुछ चेंज आता है तो इतना इजी नहीं होता है उसको अडैप्ट करना। Okay, let's talk about another factor, individual behavior, which is called attitude। या पहले पर्सनालिटी की बात करते हैं। Individual behavior, we all have different personalities, हम सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट में। तुमको क्या लगता है? देखो, हम लोग कहते हैं कि सेल्स का जॉब बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होता है, कहते हैं ना, टारगेट अचीव करना, इंश्योरेंस बेचना, या तुमको हर महीने का सेल्स दिखाना है। अब तो बैंकिंग सेक्टर भी इतना मुश्किल हो गया टारगेट की वजह से। You think कि everyone can work in that sector? No, not everyone can work for that sector. वो उसी तरीके के लोग काम कर सकते हैं जिनकी पर्सनालिटी स्ट्रेस बेयर कर सकती है, ठीक है? There are people who opt for आर्मी। सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तुम केपेबल भी रहोगे, तुम्हारी चाहत नहीं होगी आर्मी ज्वाइन करने की, क्योंकि इतना रिगरस और इतना डिसिप्लिन होना सबके बस की बात नहीं है। इतना फिजिकली फिट होना, हर 2 साल में 3 साल में ट्रांसफर हो जाना, ले लद्दाख कहीं भी तुमको ऑल इंडिया सर्व करना है, ये आसान नहीं होता। अंडरस्टूड? कुछ लोग बाय पर्सनालिटी शांत होते हैं, राइट? शांत होते हैं, उनको बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं आएगा, मतलब सोच समझ के वो फैसला ले सकते हैं। They just let the situation sink in. Okay? They'll just let the situation sink in. आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे। और कुछ लोग होते हैं कि उनको चिंगारी तक देने की जरूरत नहीं होती, खुद ही सुलगे रहते हैं हमेशा। होते हैं ऐसे लोग? होते हैं ना? अब तुम सोचो कि ऐसे क्यों पर्सनालिटी टेस्ट होता है इंटरव्यू में। अब तुम समझो इस बात से कि रिटन ले लेने के बाद भी तुम्हारा पर्सनालिटी टेस्ट क्यों होता है। पता चला कि तुम ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, कई बार इंटरव्यूज में जानबूझ करके ऐसी बात बोली जाती है तुमको जो तुमको सुनने में अच्छी ना लगे, वो तुमसे उसको कोई लेना देना नहीं कि वो पर्सन तुम्हारे पर कोई अटैक है। They just make sure, तुमको एक बार बोला, तुमने पोलाइटली बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, दूसरी बार बोला तुम्हारा थोड़ा सा चेहरा बन गया, तीसरी बार में वो उस चीज को फोर्स कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा बिल्कुल अब वापस से बाहर हो रहे हो, ठीक है? और चौथी बार में अरे सर आप क्या है, ठीक है? दैट मोमेंट यू आर फिनिश्ड। तुम इतना सा स्ट्रेस नहीं बेयर कर पाए, तुम कैसे टीम में काम करोगे? तुम कैसे ग्रुप में काम करो? तुम तो सबसे झगड़ के चलोगे। प्लस योर टेम्परामेंट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आगे पढ़ोगे एचआरएम में कि रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। आपको अगर ये दिमाग में है कि अच्छा नहीं लगेगा एम्प्लॉय तो निकाल देंगे मैम, और क्या इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है दूसरा ले आएंगे। इट्स नॉट इजी, बहुत पैसा खर्च होता है रिक्रूटमेंट में, और ट्रेनिंग में भी बहुत पैसा खर्च होता है। So a poor recruitment is like, you know, is like worst thing for the organization. तो पर्सनालिटी टाइप में किसी की शांत पर्सनालिटी होती है, जनरली ऐसे लोग ग्रुप में अच्छा काम करते हैं। थ्योरीज पढ़ोगे अभी धीरे धीरे आगे आके तब समझ में आएगा। दूसरा, कुछ लोग स्ट्रेस बहुत बेयर कर पाते हैं, तो इस तरीके की का जो होता है ना क्राइसिस सिचुएशन, वैसे सिचुएशन में वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग आपके आसपास होंगे, आपके घर में भी होंगे ऐसे लोग जो जिनसे डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दे विल हैव द लास्ट से इन द डिस्कशन। मतलब उन्होंने जो बात कह दी वहां पे ओवर एंड आउट करो, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं होगा। होते हैं ऐसे लोग, ठीक है? बट जहां हम लोग इस चीज को एक नेगेटिव वे में डिस्कस कर रहे हैं, वहां कई सारी ऐसी मोटिवेशनल थ्योरीज जो आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में,
वैसी मोटिवेशनल थ्योरी ये प्रूव करती है कि इस नेचर के जो लोग होते हैं ना, जिनको अथॉरिटी चाहिए होता है, मतलब मैं फाइनली डिसाइड करूंगा कि क्या होगा, सब लोग मेरे हिसाब से काम करेंगे, these people are good leaders. ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन काफी होता है इनमें, and they tend to turn out to be a good leader. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर तरीके का इंडिविजुअल बिहेवियर का अपना इम्पोर्टेंस है, तभी आप इंडिविजुअल बिहेवियर में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अंडरस्टूड? कुछ चीजें ऐसे जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, एक बहुत अच्छे लेवल पे जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, उसको बोला जाता है, उसके लिए ये बात बोली जाती है कि एंगर, नॉर्मली हम क्या करते हैं, शांत रहो, अपने आप को कंट्रोल करो, काम डाउन करो अपने आप को, बट प्लीज टेक द क्लास। मॉर्निंग की बात भी नहीं सुन रहे हो। Do you do this in every class? No, you are murmuring. I can see that. Please don't lie. बात कर रहे हो। अगर आपका ये ग्रुप है तो फिर मेरे पूरे सेमेस्टर में आपका ग्रुप को हम अलग अलग कर देंगे, पूरे सेमेस्टर में। अगर ऐसी बात है कि आपको क्लास में बैठ के अलग रखते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा क्लास किसी को नहीं करना है तो प्लीज टेल मी योर रोल नंबर एंड मार्क योर रोल नंबर, प्लीज लीव द क्लास। रोल नंबर तक हम मार्क कर देंगे, मैं मेरी क्लास में मत बैठो, नहीं बैठना है मत बैठो, या पीछे जाकर के बैठो, अपना कुछ करो, हमको कोई मतलब नहीं है, क्लास में बैठ के बात नहीं करना। तो कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, you disturb the entire rhythm of class. So for sports person, this is said कि normally we emphasize on keeping yourself calm, शांत रहिए आप, but sports person को बोला जाता है कि थोड़ा aggression में होना चाहिए। Anger is an energy for them, and they channelize that anger into motivation. Anger is also an energy. तो हर पर्सनालिटी टाइप का एक रेलेवेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी आप उसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ रहे हैं एक चैप्टर के अंदर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वही बात होते हैं कि नॉर्मली वी डू नॉट अप्रिशिएट समबडी बीइंग अग्रेसिव, but only for sports person sometimes. जैसे साइना नेहवाल, she was a very calm and quiet badminton player, very calm and quiet, and her coach often complained about her being very calm and quiet. The coach wanted her to shout a little bit, to be angry, to be aggressive, to be expressive rather. Expressive is the right word. Okay, so always there is a if and but. Alright? देखो, एटीट्यूड की बात करो, अब तुमको हम एक और चीज बताते हैं। एग्जाम्पल देखो, सपोज करो ये तुम लोग सबको पता है, क्लास में आने से पहले ही और क्लास में आने के बाद बिल्कुल मालूम है कि क्लास डिस्टर्ब करना इज नॉट अलाउड, ये सब जानते हैं आप, क्लास डिस्टर्ब करना इज नॉट अलाउड। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई लड़का या लड़की कॉन्स्टेंटली क्लास में बात कर रहा है, कॉन्स्टेंटली बात नहीं सुन रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि टीचर वोंट डू एनीथिंग, या फिर ये तो हर क्लास में कोई ना कोई मैम या सर बोलते हैं, तो उससे क्या होता है वाला टाइम, ठीक है, एंड दे आर कंटिन्यूअसली डिस्टर्बिंग द क्लास। सपोज आई गेट एंग्री एंड आई सस्पेंड दैट बॉय और गर्ल, नॉट जस्ट फ्रॉम माय क्लास बट फ्रॉम ऑल द क्लासेस फॉर द एंटायर वीक। तो एंटायर वीक, एक दिन का क्लास जोड़ लो, 7 दिन का क्लास उसमें मल्टीप्लाई करो, इतना अटेंडेंस तो तुमको नहीं मिलेगा, प्लस यू नीड टू राइट एन अपॉलजी लेटर एंड प्लस यू हैव टू कम विद योर पेरेंट्स, ठीक है, सो दैट आई इन्फॉर्म देम कि क्या कर रहा है आपका बेटा या बेटी क्लास में। ओके, सपोज करो ये केस बनता है, अब क्लास का माहौल बिल्कुल गर्म हो गया क्योंकि ऐसा हो गया किसी स्टूडेंट के साथ। स्टिल
ये जानते हुए भी कि वो गलत कर रहा था या कर रही थी, आप में से कुछ लोग जरूर होंगे ये ऐसे जो ये बोलेंगे अरे मैम को इतना भी क्या रिएक्ट करने की जरूरत है, बिल्कुल बोलेंगे कि इतना भी क्या बोल रहे हैं मैम, तो ऐसे मैम क्लास के बाहर निकाल देती हैं, बताओ पेरेंट्स से बताएंगे हम जाकर के कि हम क्लास में बात कर रहे थे। पेरेंट्स को बताना बड़ी बात हो जाती है, पेरेंट्स को लेके आना, पेरेंट्स तो समझ रहे हैं कि भाई पढ़ने भेजे, तो खराब तो लगता ही है, चाहे जितनी बदमाशी यहाँ कर लो। इट्स बैड कि एप्लीकेशन में तुम्हारे पेरेंट्स का साइन हो एंड ऑल दैट, राइट। एक ग्रुप जरूर ये बात बोलेगा कि ये मैम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है, ये जानते हुए भी कि ये प्रॉब्लम है, ओके। दूसरा ग्रुप ये बोलेगा नहीं ठीक है, बहुत देर से मना कर रही है फिर भी ऐसे किए जा रहे हैं। तीसरे ग्रुप को ये लग सकता है कि जो शांत बच्चे होते हैं क्लास के, ठीक है, जिनको ऐसे स्टूडेंट से दिक्कत होती है पर वो नहीं बोल पाते, तो वो उनको लगेगा हर क्लास में ऐसा करता था, बहुत अच्छा वो निकाला, साइलेंटली अंदर अंदर उसको ऐसे फील होगा बहुत अच्छा करता था, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, निकाल नहीं मैम उसको क्लास के बाहर, अभी थोड़ा क्लास शांति से सुनेंगे, ठीक है। Did you get different attitude for the same incident? एक ही इंसिडेंट के लिए अलग अलग एटीट्यूड आया आप लोगों में से? जो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता होगा, कुछ हो गया, किसी को फायर कर दिया, ट्रेड यूनियन सुने हो ना, ये सब लफड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, वहां के लोकल को अटैक किया गया, उसको निकाल दिया गया, अब लोकल सारा लग गया एक साथ, नहीं आपने गलत किया, आपने जानबूझ के इसके पीछे पड़ के लोकल आदमी को हटा दिया यहाँ से, ठीक है, या किसी को अनजस्टिफाइड डिसमिस कर दिया, उसकी सैलरी नहीं दी, तो कुछ उस तरीके की बात, your attitude things will change, that is a part of your individual behavior। तुम क्या पढ़ रहे हो? इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ रहे हो, ओके। इंडिविजुअल बिहेवियर में चलो एक और पार्ट है मोटिवेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है। लिख लो इसको मोटिवेशन।